تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سیکریٹریٹ کا نام امبیڈکر کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نو تعمیر شدہ ریاستی سیکریٹریٹ کو بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے چیف سیکریٹری سومیش کمار کو اس سلسلے میں کارروائی کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ KCR نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی سیکریٹریٹ کا نام امبیڈکر کے نام پر رکھنا ریاست کے تمام لوگوں کے لیے فخر کا باعث ہے اور ان کا یہ فیصلہ ملک کے لیے ایک مثال ہے۔ TRS سربراہ کے مطابق حکومت تلنگانہ امبیڈکر کے جذبے کو آگے لے کر بڑھ رہی ہے تاکہ تمام طبقات کو یکساں احترام اور حقوق مل سکیں۔ KCR نے کہا کہ ریاست کی تشکیل کے بعد سے تمام طبقات کو سماجی، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی میدانوں میں بالائے تر رکھ کر ریاست نے ترقی حاصل کی ہے۔ CM KCR نے مرکزی حکومت سے نو تعمیر شدہ پارلیمنٹ کی عمارت کا نام دستور ہند کے معمار بھیم راؤ امبیڈکر کے نام پر رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے کریم نگر BJP رکن پارلیمان بنڈی سنجے کے مکانات، تعلیم اور طبی سہولیات مہیا کرانے کے تبصرے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ انہیں عوام کو سہولیات پہنچانے سے کون روک رہا ہے۔ KTR نے ایک بیان میں کہا کہ BJP کی حماقت دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایک جانب وشوا گرو یعنی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مفت سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں، دوسری طرف کریم نگر MP مفت تعلیم، میڈیکل کیئر اور مکانات دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس ملک پر BJP حکومت کر رہی ہے یا نہیں؟ آپ کو مفت رہائش، تعلیم اور میڈیکل کیئر فراہم کرنے سے کس نے روکا؟ تارک راما راؤ نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ تلنگانہ BJP کی جانب سے اعلان کردہ مفت اسکیمات پر پارلیمنٹ میں قانون نافذ کرے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ملک کی 28 ریاستوں میں غریبوں کو مفت تعلیم، میڈیکل کیئر اور رہائش فراہم کرنے کا قانون منظور ہوتا ہے تو TRS پارٹی اس کی مکمل حمایت کرے گی۔ I wish you all a very happy Engineers Day. అందరికీ కూడా Engineers Day సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. Before I go into my formal speech, I just wanted to say a few things. I have a lot of friends from JNTU, who've studied here, who've passed, who have excelled in life, and who actually, some of them actually work with me. I have my chief engineer in HMDA, Shri BLN Reddy Garu, who's also an alumnus of Antena. Thank you. And I have lots of colleagues, lots of friends from JNTU. I have Raj Shekhar Garu here. Raj, I think you should just... Raj is a senior of mine, actually. He's far older. He looks young, but he's far older. He's also from JNTU. And I have many, many other friends. So just wanted to acknowledge all of them and thank you for having us here. About 2.5 years ago, Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi Garu, he had actually called for a meeting in New Delhi with all the political parties and representatives of political parties. And the theme of the meeting was how to, on the eve of 75th year of independence, how do we create new India? How do we ensure that the next 25 years, post 75, will be vibrant, will be, enough of time to make India a first world country? That was the theme of the meeting. So on behalf of the Telangana Rashtra Samiti, as deputed by our Honorable Chief Minister, KCR Garu, BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار نے دہلی شراب گھوٹالے میں KCR خاندان ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ کوکٹ پلی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ دہلی کے شراب گھوٹالے میں KCR خاندان کا رول ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف شراب گھوٹالے بلکہ اراضی، ریت اور دیگر کئی گھوٹالوں میں KCR فیملی ملوث ہے۔ عوام کو مکانات فراہم کرنے کے وعدوں کو پورا نہ کرنے پر بھی بنڈی سنجے کمار نے KCR پر تنقید کی اور کہا کہ غریبوں کو مکانات فراہم کرنے کے لیے رشوت طلب کی گئی۔ BJP رکن پارلیمان نے کہا کہ BJP کے تلنگانہ ریاست میں برسر اقتدار آنے پر ووٹ ڈالنے والے تمام بے گھر لوگوں سمیت دیگر ریاستوں سے روزگار کے لیے تلنگانہ آنے والے مستحق افراد کو مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے بنجارہ ہلز کیئر اسپتال میں ہیوگو روبوٹکس اسسٹڈ سسٹم کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے قیام کے بعد
हर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम किया जा रहा है और हर साल पीजी सीट्सों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले यूजी की सीट्स 800 हुआ करती थी, ताहम उन्हें अब बढ़ाकर 2840 किया गया है। रोबोटिक सिस्टम के आगाज पर हरीश राव ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे रिकवरी में इजाफा होगा और अस्पताल में मरीजों का ख़याम भी कम होगा तो बिल कम आएगा। उन्होंने बेहतरीन इलाज के साथ साथ सस्ता इलाज फराहम करने का अस्पताल इंतज़ामिया को मशवरा दिया और हुकूमत की जानिब से मख्तस किए गए बजट, मुख्तलिफ स्कीमात और मुख्तलिफ सहूलियात का भी जिक्र किया। दीगर मकामात से इलाज के लिए हैदराबाद आने वालों की तादाद बढ़ने पर हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद में मेडिकल टूरिज्म तरक्की याफ्ता है। ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన ఈ నేషనల్ డీవార్మింగ్ డేను మనం జరుపుకోవడం జరుగుతాం. ముఖ్యంగా ఈ డీవార్మింగ్ డే అనేటువంటిది నూలి పురుగుల నివారణ దినోత్సవం. ఎందుకు అసలు ఈ నూలి పురుగులు వస్తాయి అంటే మన వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, పరిసరాల పరిశుభ్రత, తినేటువంటి ఆహారంలో కూడా క్వాలిటీ డైట్, ఈ మూడు ఉంటే అసలు ఈ నూలి పురుగులు అనేవి మనకు రానే రావు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు కొంతమంది పిల్లల్లో మరి ఈ నూలి పురుగులు రావడం వల్ల ఆ పిల్లలు ఆకలి మందగించడం కానీ, ఆ పిల్లలు బక్కగా కావడము, రక్తహీనతతో బాధపడము, ఎదుగుదల తగ్గిపోవడము, మరి రకరకాల సమస్యలతో పిల్లలు బాధపడుతుంటారు. కానీ అది ఏంటో అర్థం కాదు. అది ఇంకా బాగా ముదిరిపోతే ఆపరేషన్ చేసి మరి సర్జరీ చేసి ఆ నూలి పురుగుల్ని బయటకు తీయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకోసమే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన ప్రభుత్వం ఉచితంగా పిల్లలందరికీ 1వ సంవత్సరం వయసు నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసు ఉండే పిల్లలందరికీ ఉచితంగా ఈ టాబ్లెట్స్, ఆల్బెండజో టాబ్లెట్స్ను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దీన్ని పిల్లలు తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాలి. ఇది లేకపోయినా వేసుకుంటే వచ్చే నష్టం లేదు. ఒకవేళ మన కడుపులో ఆ నూలి పురుగులు ఉంటే నశించిపోతాయి, మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. లేకపోయినా అవి వేసుకున్నంత మాత్రాన వచ్చే నష్టమేం లేదు. సో మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడం కోసం ఉచితంగా అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వ్యాప్తంగా 96 లక్షల మంది పిల్లలకు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. 96 లక్షల మంది పిల్లలకు ఉచితంగా ఈ నూలి పురుగు నివారణ కోసం ప్రభుత్వం మందులు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని ఇటు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, శిశు సంక్షేమ శాఖ, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటు, 3 డిపార్ట్మెంట్లు కలిసి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా కృషి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో పిల్లలందరూ కూడా దీన్ని తప్పకుండా ఉపయోగించాలి, మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने कहा कि जात पात के झगड़ों को तरजीह दी जाएगी तो हम पीछे रह जाएंगे। केटीआर ने जेएनटीयू में इनोवेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 2.5 साल पहले वजीर आजम ने मेक इन इंडिया पर एक इजलास तलब किया था। इस मौके पर वजीर आजम को 3 आई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ और इनोवेशन से मुताल्लिक़ बताया गया था और वजीर आजम को हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए 3 आई पर अमल करने का मशवरा भी दिया गया था। केटीआर ने कहा कि TSI पास पॉलिसी रियासत में 3 आई की बुनियाद पर नाफिज की जा रही है। मुख्तसर मुद्दत में रियासत की तरक्की के सफ़र का केटीआर ने अपने खिताब में जिक्र किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और उसके फ़वाइद भी बयान किए। मुल्क में जात पात और मजहब के नाम पर जारी झगड़ों पर केटीआर ने कहा कि हम मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और ऐसा करके मुल्क को माजी में ले जा रहे हैं, जबकि चीन और दीगर ममालिक मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। आईटी मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि अगर तुलबा जात पात के तनाज़ात को तरजीह देंगे तो वो पीछे रहेंगे। तुलबा से उन्होंने मुतालबा किया कि वो जॉब सर्च करने वालों के बजाय जॉब क्रिएट्स करने वाले बने। मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन लंबाद्री, JNTU VC कट्टा नरसिम्हा व दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रेड हिल्स फैक्सी में मुनक़िद सीड्समैन एसोसिएशन के 27वें सालाना इजलास में शिरकत की। एसोसिएशन सदर मुरलीधर रेड्डी, साबिक़ सदर आसन रेड्डी, नायब सदर रामकृष्णा, सेक्रेटरी रवि कुमार, ट्रेजरर चिरालू, ED जगदीश्वर रेड्डी ने इजलास में हिस्सा लिया। सीड्समैन एसोसिएशन के बानी प्रोफेसर योगेश्वर राव को फादर ऑफ सीड्स इंडस्ट्री के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।
इस इजलास में कोरोना बहरान के दौरान ज़राई शोबे से मुताल्लिक़ हुकूमत के फैसलों को एसोसिएशन ने सराहा और इसे मुल्क के लिए मिसाली करार दिया। एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत के इक़दाम के सबब ही शोबे ज़राअत और बीज बहरान का शिकार होने से महफूज रहे। इजलास से सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत पेशा नहीं है बल्कि ज़िंदगी है। उनका कहना है कि मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए नौजवानों को इस तबक़े की तरफ माइल होना चाहिए और इसको यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने इक़दाम किए हैं ताकि नौजवान पुरएतमाद होकर शोबे में कदम रखें। वज़ीर ज़राअत ने रियासत में महकमे ज़राअत और किसानों के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम की तफसीलात भी बताईं। అనుగుణంగా వ్యవసాయం మరింత వృద్ధి చెందాలంటే దానికి అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటి ప్రాథమిక అంశము విత్తనం. ఎంత నాణ్యవంతమైన విత్తనం ఉంటే అంత నాణ్యవంతమైనటువంటి ఆహార ఉత్పత్తులు వస్తాయి. మనందరికీ తెలిసిందే. ఈ విత్తనోత్పత్తిలో అధిక దిగుబడులు రావడానికి అవసరమైనటువంటి మరింత శాస్త్రీయతను ఎప్పటికప్పుడు జోడిస్తూ పోవాలి. మీరు దాన్ని ఆంగ్లంలో R&D అంటారు. మనం ఎంత ఫోకస్ పెడితే R&D మీద అంత క్వాలిటేటివ్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది, అంత క్వాలిటేటివ్ బిజినెస్ మీకు వస్తుంది. అందుకోసమే ఒక విత్తన రంగమే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు చూస్తే ఏ దేశాలలో అయితే అత్యధికంగా పరిశోధనల మీద దృష్టి కేంద్రీకరించిన ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో వాళ్ళే ఇవాళ ప్రపంచానికి బాసులుగా ఉన్నారు టెక్నాలజీ విషయంలో. ఇంత చిన్న దేశం ప్రపంచంలో ఇజ్రాయెల్, వాళ్ళు పరిశోధనల మీద ప్రపంచ అగ్రిగేట్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారు. అందుకోసమే ఇంత చిన్న దేశమైనా ప్రపంచం అన్ని అనుకరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సామాన్యులైనా వాళ్ళకు వచ్చిన ఆలోచనలు ఈ దేశానికి ఉపయోగపడతాయి. దేశానికి ఉపయోగపడే ఆలోచనలు పైన ఉన్న పెద్దోళ్ళే చేస్తారనే భ్రమలకెళ్ళి కూడా మనం బయటికి రావాలి. ఒక సామాన్యుని ఆలోచన కూడా దేశాన్ని మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండాలి మనం ఎప్పుడు ఆలోచించేటప్పుడు. సో మీరు గొప్పగా రాణించాలి. మీ సంస్థ ఆధ్వర్యంలోని కంపెనీలన్నీ కూడా సజావుగా మీ కార్యక్రమాలు జరిగి ఇంకా ప్రాస్పర్ కావాలి, ఇంకా మీరు రీసెర్చ్ని పెంచాలి, ఇంకా విస్తరించాలని చెప్పి మనసారా కోరుకుంటూ నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించాను. तेलंगाना के एक्साइज, खेल, सियाहत और सकाफत के वजीर श्रीनिवास गौड़ से मंगोलिया के सफीर ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। श्रीनिवास गौड़ ने एचई ज्ञानबोर्ड दामबाजव का अपने कैंप ऑफिस में इस्तकबाल किया। स्टेट बुद्धवनम प्रोजेक्ट स्पेशल ऑफिसर मल्लपल्ली लक्ष्मయ్య, तेलंगाना टूरिज्म डेवलप कॉरपोरेशन MD मनोहर, कल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मामिदी हरिकृष्ण, OSD सुधन रेड्डी व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने 17 सितंबर को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िद प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया है। याद रहे कि 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे तकरीबात का आगाज हो रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह इन तकरीबात में शामिल होंगे। किशन रेड्डी ने ओहदेदारों से वहां जारी कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उनके हमरा पार्टी लीडर्स व दीगर भी मौजूद थे। बहादुरपुरा रुकने असम्बली नवाब मोहम्मद मुअज़्ज़म खान ने मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स के हमरा ईदगाह मीरालम ता तीगलकुंटा का मुआयना किया और तिरंगा रैली के इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मुअज़्ज़म खान ने तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने अवाम से इस रैली में कसीर तादाद में हिस्सा लेने और इसे कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की। आपको बता दें कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 17 सितंबर को मनाए जा रहे यौम कौमी यकजहती के पेश नज़र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 सितंबर को तिरंगा रैली का एहतमाम किया है। सरबरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत तिरंगा रैली ईदगाह मीरालम ता तीगलकुंटा चौराहे तक निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी के अराकीन असम्बली, कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद हिस्सा लेगी। कल 16 सितंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तिरंगा रैली है। उस रैली के सिलसिले में मैं हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स, शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर और राजेंद्र नगर इंचार्ज जनाब रहमत बेग और मजलिस इत्तेहादुल
के मुस्लिमीन के वर्कर्स आज एक प्रोग्राम रखा गया था जिस जगह से रैली चालू हो रही है मस्जिद अबू बकर मीर आलम से इस तीगल कुंटा चौरस्ते तक। तो हम एक टीम बनाकर पिछले 8 दिन 10 दिन से काम कर रहे थे। वो टीम इस तरह से सेट करे थे मस्जिद अबू बकर से लेके बहादुरपुरा चौरस्ते तलक जनाब हुसैनी पाशा किशनबाग कॉरपोरेटर की निगरानी में एरिया है, पूरा इंतज़ामात उन्हों देखेंगे वहाँ पर। और बहादुरपुरा मीर आलम से दानम्मा झोपड़ी तलक जनाब मुबीन साहब का इलाका लगता है इस तरफ शास्त्रीपुरम, तो मुबीन साहब के इंतज़ामात में वो सारी रोड है उधर का इंतज़ामात उन्हों देख रहे हैं। और मस्जिद अबू बकर से लेकर दाड़बन चौरस्ते से सेंट मेरी स्कूल तलक रमनसपुरा कॉरपोरेटर जनाब खादर साहब इलाका देख रहे हैं, उनके इंतज़ामात में रहे। सेंट मेरी चौरस्ते से लेकर गुड़ी के दवाखाने तलक जहानुमा कॉरपोरेटर जनाब मुख्तदर बाबा के हवाले किया गया था। इंस्पेक्शन पूरा उन्होंने भी करे, पूरा इंतज़ामात उस रूट का जनाब बाबा साहब कर रहे हैं। उसके बाद गुड़ी के दवाखाने से लेके इस तीगल कुंटा चौरस्ते तलक इस एरिया के कॉरपोरेटर भी लगते हैं जनाब हन्नान साहब नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के, उनके इंतज़ामात में दिया गया। और इस तीगल कुंटा चौरस्ते से शेख की मस्जिद तलक जनाब मोहम्मद सलीम साहब को दिया गया था इलाका। वो पूरा इंतज़ामात देखेंगे, इधर का पब्लिक कैसा आ रही, क्या है क्या नहीं, पूरा इंतज़ामात उनके हाथ में। और मस्जिद अबू बकर में कल ठीक 2 बजे नमाज है और वहाँ का इंतज़ाम और इस तीगल कुंटे का जो जलसे का मुकाम है यहाँ का टोटल इस 2 जगह का इंतज़ाम जनाब रहमत बेग साहब इंचार्ज राजेंद्र नगर उनके इंतज़ामात में दिया गया था। उन्होंने इंतज़ाम देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वर्क पिछले 8 दिन से लगी हुई थी, अल्लाह का फजल है, हर इंतज़ामात पूरे हो चुके हैं। अब खाली इंतज़ार है तो रैली का इंतज़ार है। इंशाअल्लाह ताला वो रैली भी एक कामयाबी की रैली रहेंगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। और मैं ख़ास तौर से आपके चैनलों के ज़रिए हैदराबाद की आवाम से गुजारिश करता हूँ कल की रैली में हिस्सा लीजिए। इस रैली में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे MLAs, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर हैदराबाद के सुदूर मोतमदीन व वर्कर्स, और ख़ास तौर से मैं हैदराबाद की आवाम से गुजारिश करता हूँ आप लोग इस रैली में हिस्सा लीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्रोग्राम 16 सितंबर का है उसे कामयाब कीजिए। शुक्रिया। CPM पार्टी की जानिब से यौम आज़ादी तेलंगाना के मौके पर एक रैली का एहतमाम किया गया। CPM हैदराबाद साउथ कमेटी की जानिब से तहरीक तेलंगाना के शोहदा की याद में एक हफ्ता तकारीब मनाई जा रही हैं और इसी के हिस्से के तौर पर आज शालीबंडा तक चारमीनार रैली निकाली गई। ओल्ड सिटी CPM इंचार्ज सत्तार, दीगर लीडर्स और कारकुनान ने इसमें हिस्सा लिया। हिंदुस्तान की मारूफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने 14 नए इंश्योरेंस सॉल्यूशन लॉन्च किए हैं जो कि हेल्थ, कॉरपोरेटर और मोटर सेगमेंट्स के लिए मुहैया करवाए जाएंगे। जनरल इंश्योरेंस में अब की बार तमाम टेस्ट और इलाज का भी अहाता किया गया है। वबा के बाद मुख्तलिफ तिबी व दीगर मसाइल के मद्देनजर ICICI लोम्बार्ड ने इन्हें मुतारिफ करवाया है। जोनल मैनेजर, स्टेट मैनेजर ने इसकी तफसीलात बताई। हैदराबाद में ये मिलने का मौका निकाल के आप सबको यहाँ पे इनवाइट करने का यही रीज़न था कि अभी पैंडमिक के पहले, पैंडमिक के बाद जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑल, उसको ना ध्यान में रखते हुए ICICI लोम्बार्ड ने ना एक 14 प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। ये 14 प्रोडक्ट में से ना एक 5-6 प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ रिलेटेड हैं, एक 4 प्रोडक्ट हैं जो मोटर रिलेटेड हैं, और रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ना ऐसे यानी कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस का जो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट होता है
उसको कैटर करने के लिए हमने रिमेनिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में ना बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं कस्टमर के, जो चेंज हुई हैं पैंडमिक से पहले ना, कोई डॉक्टर कंसल्टेशन या ई कंसल्टेशंस या जो है वो नहीं हो पाता था, बट आज ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ICICI लोम्बार्ड ने ऐसे फीचर्स जोड़ के ना ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं जो कस्टमर बैठे बिठाए ना सारा कुछ चीज़ कर पाएगा। आज पैंडमिक के टाइम पे 2 साल ना जब कस्टमर अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर घर पे रखा हुआ था, इंश्योरेंस नहीं था बिकॉज वो चला नहीं पा रहे थे, राइट। वहाँ पे नया रिक्वायरमेंट आया, कस्टमर सोचने लगा कि भाई मैं ये अगर गाड़ी बाहर ही नहीं निकाल रहा हूँ तो इसको इंश्योरेंस क्यों पे करूँ। तो ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे मैं यूज़ करूँ तो पे करूँ। तो ये ध्यान में रखते हुए ना हमने मोटर पॉलिसीज़ लॉन्च करी हैं जहाँ पे हम बोलते हैं पे व्हेन यू यूज़। तो ऐसे ही आजकल हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ना ये स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स आगे आ रहे हैं। ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में ना ICICI लोम्बार्ड भी आगे आके ना हमने उनको एक पोर्टल दिया हुआ है। तो छोटे मोटे जो नए चालू हुए इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो अपना रिस्क कवर करने के लिए ना अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना रिस्क कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो हम आप सबको बताना चाहते थे आज के दिन, इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू सो मच। कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन के हाथों नारायण नगर डिवीजन में ओपन जिम का इफ्तिताह अंजाम पाया। रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA कारवान ने सालार मिल्लत पार्क वाक़े हकीमपेट कुंटा में ओपन जिम का आगाज़ किया। उनके हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, महकमा GHMC के अहदेदार DMC नरसिमा, डिप्टी EE रामकृष्णा व दीगर मौजूद थे। कारवान MLA ने यौम कौमी यकजहती के मौके पर निकाली जाने वाली तिरंगा रैली के इंतजामात से मुतालिक एक इजलास मुनक्किद किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कौसम मोहिउद्दीन ने इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजूज़मा, हारून फरहान, बदरुद्दीन, स्वामी यादव, गोलकुंडा MRO, नोडल ऑफिसर, जॉइंट कलेक्टर, GHMC एहलकार, लंगर हाउस CI व दीगर ने हिस्सा लिया। इस दौरान 16 सितंबर को मुनक्किद तिरंगा रैली के इंतजामात से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। तिरंगा रैली ईदगाह मीर आलम तक तीगलकुंटा चौराहे तक निकाली जाएगी। कौसम मोहिउद्दीन ने इस ज़िमन में तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। शहर के इलाके मलकपेट में कूड़े की लॉरी की जद में आने से मजदूर चंद्रैया बरसरे मौका हलाक हो गया। बताया गया है कि कचरे की गाड़ी एक मजदूर चला रहा था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। लवाहकीन ने ड्राइवर के बजाय मजदूर को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने पर सख्त बरहमी जताई है। उनका कहना है कि अफसरान से जब गाड़ी लेबर के हवाले करने से मुताल्लिक़ पूछा जा रहा है तो वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। हैदराबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर अमरेश और लेबर लीडर ने महलूक मजदूर के अहले खाना के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। ఈరోజు చాలా బాధాకరం। మరి మా ఉద్యోగి అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగి చంద్రయ్య మరి ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి పనిచేసి మరి అలాంటి వ్యక్తి చనిపోవడం అంటే చాలా బాధాకరం। మరి ఇదే మా కృష్ణ దగ్గర ఎన్నో రోజుల సంది ఆయన లేబర్గా పనిచేసిండు। అదేవిధంగా మరి ఈరోజు ఆయన చనిపోయాడని తెలియగానే మాకు బాధాకరం। ఫస్ట్గా మరి చంద్రయ్య ఆత్మ శాంతించాలని కోరుకుంటూ మరి మాతోటి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ అయినా కానీ మేము ఒకటే కమిషనర్ గారితో డిమాండ్ చేయడం ఏంటంటే కార్పొరేషన్లో మరి చాలామంది ఈ విధంగా చనిపోతారు, వాళ్లకు సరైన బెనిఫిట్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని మేము మీ ద్వారా కోరుకుంటున్నాం। అదే ఆయన ఆత్మకు శాంతించాలని కోరుకుంటున్నాం। ఉంటే అధికారులు యాక్షన్ తీసుకోవాలి। మరి ఇదంతా ఏంటంటే ఒక ఈ డ్రైవర్ల మీద ఒక వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్లను పెడతారు, అదేవిధంగా కేర్ టేకర్స్ అని ఉంటారు, వాళ్ళు దీనికి బాధ్యత వహించాలి। ఎందుకంటే కేర్ టేకర్స్ అనేటైనాకు చూస్తుండాలి, ఎవరో ఇక్కడ కాకుండా IBTలో కూడా ఉండరు, వాళ్ళంతా వాళ్ళ సొంత పనులకు చూసుకొని ఇప్పుడు సొంత పనులకు చూసుకుంటారు।
ఆ విధంగా వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి చట్టపరంగా తప్పు ఎవరు చేసినా యాక్షన్ తీసుకోవడం సహజము. తప్పు చేసినందుకు ఎవరైనా యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా మేము కూడా దాన్ని ఖండిస్తున్నాం. చనిపోయినాక ఎంత బెనిఫిట్స్ అయితే మా యూనియన్ తరపు నుంచి అన్ని విధాలుగా ఇస్తాము. ఆల్రెడీ కూడా ఇన్సూరెన్స్లు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడే నేను అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళని ఫోన్ చేసి కనుక్కున్నాను, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ లేవంట. అంటే వెహికల్స్ ఓల్డ్ అయినాయి కాబట్టి అదేదో కమిషనర్తో చర్చించిన తర్వాత మిగతా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీకు ఏమున్నా సమాచారం ఇస్తాం. पुराने शहर के इलाके दबीरपुरे से नाबालिग लड़की का अगवा और फिर उसकी इज्तिमाई असमत रेजी किए जाने का वाकया झूठा और बेबुनियाद साबित हुआ है। दबीरपुरा सीआई कोटेश्वर राव के मुताबिक पुराने शहर की नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई असमत दरी नहीं हुई और न ही किसी ने उसका अगवा किया, बल्कि वो खुद किसी के हमरा गई थी। दबीरपुरा सीआई ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस वाक़े में किसी और के भी मुलविस होने की तहकीकात की जा रही है। आपको बता दें कि शहर में आज दबीरपुरा इलाके से नाबालिग लड़की का अगवा और फिर उसकी इज्तिमाई असमत दरी होने की खबरें गश्त करती रही। ताहम पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि इस नौयत का कोई वाक़या पेश नहीं आया। గర్ల్ మిస్సింగ్ అయినట్టు ఫస్ట్ కంప్లైంట్ 13 రోజు కంప్లైంట్ వచ్చింది. దాంట్లో మనం ఇది మైనర్ గర్ల్ కాబట్టి అమ్మాయి కిడ్నాప్ కేసు అనేది కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. 13 రోజు కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఆ కేసు రిజిస్టర్ అయిన కాడ నుంచి ఇన్వెస్టిగేషన్ త్వరగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఈరోజు అమ్మాయి 14th రోజు మళ్ళీ వచ్చేసి మాకు అంటే ఒక కాడ ఉన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. వాళ్ళ దగ్గర పోయిన తర్వాత ఏమైందని అడిగితేనో సమ్ ఏదో ఇంకా ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఇక్కడ తీసుకుపోయారు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది తరువుగా ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత రేపు జరిగింది సార్. అసలు అమ్మాయి వర్షన్ ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత కొంచెం అమ్మాయిని కూడా వచ్చిన అమ్మాయిని ఇమీడియట్గా భరోసా సెంటర్ పంపించడం జరిగింది. తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ పంపించిన తర్వాత కొంత ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా డీటెయిల్గా వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎలాబరేట్గా అప్పుడు అమ్మాయిని వదిలేసిపోయారు సార్. అక్కడ కిడ్నాప్ చేశారు సార్. అమ్మాయి మైనర్ గర్ల్ కాబట్టి కిడ్నాప్ చేశారని చెప్పేసి కేసు కడతాం మనం. ఎప్పుడైనా మిస్సింగ్ కేసు కడతాం. వాళ్ళే వదిలేసిపోయారు సార్. అక్కడ వదిలేసిపోయారు అని చెప్పేసి అమ్మాయి చెప్పడం జరిగింది. దానిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. మీకు డీటెయిల్గా దాని పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే కొద్దిగా అమ్మాయికి ఉన్న మొత్తం మంది ఇచ్చారు చెప్తారు. వాటి గురించి కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్లో వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారా సార్, ఇంకెవరైనా ఉన్నారు? నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇద్దరే ఉన్నారు అని చెప్పి ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇంకా ఉన్నట్టు కూడా చెప్తాం, కానీ ఇద్దరు ఉన్నట్టు మనకు చెప్పడం జరిగింది. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 12 हुफाज इकराम ने नीट में गैर मामूली मुजाहरा करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की है। चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने बताया कि जनूबी हिंद के मारूफ तालीमी इदारे की जानिब से शुरू किए गए खुसूसी प्रोग्राम्स तालीमी मैदान में एक इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल खदीर ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शाहीन इदाराजात बिदर के हुफाज तलबा नीट इम्तिहान में शरीक हुए और 12 हुफाज ने बेहतर मुजाहरा किया। उन्होंने तमाम कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए मसरत का इजहार किया। चेयरमैन शाहीन ग्रुप ने नीट इम्तिहान रिपीट करने वाले तलबा के लिए खुसूसी स्कीम तरतीब देने का भी ऐलान किया और दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। नीट 2022 का शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बेहतरीन नताइज आए हैं और बीदर कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह 450 से ज़ायद स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट मिलने की हमको उम्मीद है। और ख़ुशी की बात यह है कि इसमें 12 हुफ़ाज़ हैं जो असली तालीम से बिल्कुल नाबलद थे और मदरसे से आए थे। ये 12 हुफ़ाज़ को भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलने की उम्मीद है। शाहीन का टॉपर, बीदर का टॉपर और गुलबर्गा डिवीज़न का टॉपर हाफिज़ इकबाल अली 680 मार्क्स लेते हुए पूरे मुल्क के हुफ़ाज़ उलमा इकराम मदरसे के ज़िम्मेदारों को एक मैसेज दिए हैं कि मदरसे के फ़ारिग़ीन कभी पीछे नहीं रहेंगे। ये बात गलत है कि हाफिज़ों को टेलर बनाया जाए, बल्कि हाफिज़ों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाए, IAS IPS बनाया जाए और वो कुछ ना बन सके तो डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। ये मैसेज पूरे मुल्क भर में देने में कामयाब हुए और उलमा इकराम की ख्वाहिश है कि इस नज़रिए ख़याल को आलम के कोने कोने में फैला दो। आज मदरसों पर नुक्ताचीनी हो रही है तो मदरसे के लोग अपनी काबिलियत और सलाहियत, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करते हुए एक बेहतरीन नस्ल बनाएं। ये हुफ़ाज़ और उलमा बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे। ये देने वाले बने तो यकीनन दुनिया ठहरने के लिए, लाइन लगाने के लिए तैयार है। तो हमारी ख्वाहिश है कि
मुल्क के तमाम हुफ़ाज़ तक हमारा ये मैसेज पहुँचे और नीट 2022 में एग्ज़ाम दिए हुए हुफ़ाज़ इकराम मुल्क भर के जो 350 से ज़ायद मार्क्स स्कोर किए हैं उनको हमारे मुल्क भर के 12 रेसिडेंशियल कैंपसेस में शाहीन के मुकम्मल फ़्री ताम क़याम के साथ क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। इस बात का हम ऐलान करते हैं और हमारी वेबसाइट shaheengroup.org पर विज़िट करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और सेंटर का सिलेक्शन होता है। हैदराबाद में लिंगमपल्ली चंदानगर में एक नया हिफ्ज़ुल कुरान प्लस का सेंटर शुरू हुआ है जहाँ पे 80 तालीम से नाबलद हुफ़ाज़ को जो 12 साल से 17 साल के दरमियान में हैं उनको लेकर 10th पास किया जाता है और 11th 12th करवा कर ग्रेजुएशन के लिए भेजने की तैयारी की जाती है। तो वहाँ पर नया सेंटर शुरू हो रहा है और वहाँ पर मुकम्मल मुफ्त में ये हुफ़ाज़ के लिए इंतज़ाम रहेगा। मस्जिद हसन में नहायत ही कामयाबी के साथ ये काम चल रहा है और ऐसे 30 से ज़ायद सेंटर मुल्क भर में चल रहे हैं। हम हुफ़ाज़ को असली तालीम से जोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और उलमा इकराम की सरपरस्ती है। दीनी मदारिस में असली तालीम शुरू हो जाए और कैंपसेस शुरू हो जाएं। रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ रही है। ख़ास तौर पे बॉयज़ काफ़ी डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और थे जिसमें बॉम्बे, गुलबर्गा और नॉर्थ इंडिया के दिल्ली से भी हैं जो हॉस्टल में रहे 9 से 10 से हॉस्टल में रहे और वो सक्सेस हुए हैं। इसके बाद भी हुफ़ाज़ हैं जो डेंटल के लिए, आयुर्वेदिक के लिए, यूनानी के लिए होंगे, उसमें कुछ ड्रॉप करके भी फिर आगे जो है प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं। हम हुफ़ाज़ को मेडिकल फील्ड से, नर्सिंग कोर्सेज से, डी फार्मेसी से, बी फार्मेसी से जोड़ना चाहते हैं और उनको स्कॉलरशिप देकर इंस्टीट्यूशन के लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हुफ़ाज़ को स्कॉलरशिप दें, 50% फ़ीस लें और 50% हॉस्टल की फ़ीस शाहीन अपने तरफ से स्पॉन्सर करने का पेशकश किया है। और आज मुल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी से भी हमारी बातचीत हुई तो वो भी जो है कुछ स्टूडेंट्स को अपना कोटे में जो है देने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं। इस तरह से हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशन को बात कर रहे हैं, मुल्क भर के हुफ़ाज़ को असली तालीम से जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। ज़िले कामारेड्डी में गाड़ी की टक्कर से एक चीता हलाक हुआ है। सराय के मुताबिक 4 शमे की रात सदाशिव नगर मंडल के जंगलाती इलाके में नामालूम गाड़ी की टक्कर से चीते की मौत वाक़ई हुई है। इतला मिलने पर महकमा जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंच गए और मुआयना किया। FRO रमेश और ओहदेदारों ने तेंदुए की उम्र तकरीबन 1.5 साल बताई है। समझा जा रहा है कि सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से वो हलाक हो गया। चीते की लाश को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेस्ट ऑफिस मुंतकिल किया गया। कामारेड्डी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक खून का अतिया कैंप 20 सितंबर को मुनक्किद हो रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप के इनेकाद का मकसद रियासत तेलंगाना में थैलेसीमिया से मुतासिरा मरीजों की मदद करना और उनकी जान बचाना है। मोहम्मद जमील अहमद कामारेड्डी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर ने एक पैगाम जारी करते हुए शहरियों, बिलखसूस नौजवानों, असातिज़ा और तुलबा से इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बनने और अपने खून का अतिया देकर कीमती जानें बचाने की पुरजोर अपील की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कामारेड्डी ब्लड डोनर्स के ज़रिए से 20 तारीख के दिन कर्षक बीड कॉलेज में मेगा ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है। ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में तलेसामिया के जो बच्चे बीमार हैं, ये बच्चों को 20 दिन की एक मरतबा ब्लड की ज़रूरत होती है। इस मौके पे कामारेड्डी ब्लड डोनर्स ने बहुत बड़ा जो है सो ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है। इसमें आप लोग जो है सो ब्लड डोनेशन के वजह से नौजवान, टीचर्स, यूथ सब पार्टिसिपेट होना चाहिए, इसलिए कि ये ब्लड डोनेशन आप एक ब्लड डोनेशन देने से एक जान बचा सकते हैं, क्योंकि ये खून का जो अतिया होता है, जो लोग मौत के मुंह में जो रहते हैं उन लोगों को जो खून दे रहे हैं वो तो आप एक जान बचा रहे हैं। इसलिए मेरी अदबन गुजारिश ये है कि कामारेड्डी ब्लड डोनर की तरफ से, IVF की तरफ से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खूनी अतिया कैंप में जो सो हिस्सा ले, बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ। शुक्रिया। कोरोना वायरस का हिंदुस्तान में फैलाव जारी है। 24 घंटों के दौरान 6,422 अफराद कोरोना का शिकार हो गए और 34 अफराद हलाक हो गए। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि कोरोना से मुल्क में कुल 5,28,250 हलाकतें हो चुकी हैं। एक्टिव केस लोड
46,379 रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान 5,748 अफराद कोरोना से सेहत याब हो चुके हैं। मुल्क में सेहत याब होने वालों की तादाद 4,39,41,840 हो चुकी है, जबकि सेहत याबी की शरह मुसलसिल 98.7% रही। एक दिन में 3,14,692 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल कोरोना टेस्ट की तादाद 79.6 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्की सतह पर जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत 215.9 करोड़ अफराद ने कोरोना टीका लिया है।